हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 25 मार्च और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप सभी को एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है और एंड तक बने रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ The Purple Fest 2025 held at Rashtrapati Bhavan and organized by DEPWD, Ministry of Social Justice and Empowerment, saw 23,500 attendance promoting inclusivity, accessibility and empowerment for Divyangjan. The event featured literary discussions, sports, corporate collaboration and cultural performance, fostering an inclusive society. तो भाई दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया और यह डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया और इसमें करीब 23,500 लोग शामिल हुए। ओके, नेक्स्ट। The Center for Development of Telematics has launched Samarth, an incubation program to foster innovation in telecom and IT. It supports startups in telecom software, cyber security, 5G, 6G, AI, IoT, and quantum technologies with STPI as the implementation partner. Running in hybrid mode, the program will have 2 cohorts per year, each with 18 startups offering funding, mentorship, and infrastructure support. तो अभी सी डॉट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है समर्थ। यह टेलीकॉम और आईटी सेक्टर में इनोवेशन को फॉस्टर करेगा और स्टार्टअप्स को यह टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, 5G, AI, IoT एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेगा। और STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होगी। ओके, ओवरऑल आपको इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। Andhra Pradesh CM N. Chandrababu Naidu announced a 58-foot statue of Potty Sri Ramalu in Amravati to honor his sacrifice for Andhra Pradesh formation in 1953. Along with a memorial, his native house in Padmatipalli will be converted into a museum and a modern health center, and high school will be established in his village. The project will be completed before his next birth anniversary. भाई आंध्र प्रदेश के सीएम जो एन चंद्रबाबू नायडू है, उन्होंने 58 फुट की पोटी श्री रामलू जी की स्टैचू को मंजूरी दी है। और यह जब 1953 में आंध्र प्रदेश बना था तो उनके सेक्रीफाइस को सम्मान के लिए यह डिसीजन लिया गया है। इसके साथ ही उनके जो पद्मावतीपल्ली में नेटिव हाउस है उसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया जाएगा और उनके विलेज में मॉडर्न हेल्थ सेंटर और हाई स्कूल भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। और यह उनके नेक्स्ट बर्थ एनिवर्सरी के पहले ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। BPCL has inaugurated a 3.2 MW megawatt AC floating solar powered plant at the Kochi refinery, marking a major step toward sustainable energy. Chief Secretary Sarada Muralidharan inaugurated the project on March 22nd, 2025. Built on an 8-acre rainwater harvesting pond, the plant is a part of BPCL effort to integrate renewable energy with an investment of rupees 28.93 crore. वही BPCL ने 3.2 मेगावाट AC फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का कोची रिफाइनरी में इनॉग्रेशन किया। इसे चीफ सेक्रेटरी शारदा मुरलीधरन ने 22 मार्च को इनॉग्रेट किया था। यह 8 एकड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड में बनी हुई है ये प्लांट। ओके, नेक्स्ट। NIIT University has appointed Amitabh Kant, former Niti Aayog CEO and India's G20 Sherpa as its new chancellor, effective March 10, 2025. Succeeding K. Kasturi Rangan, his leadership will focus on economic transformation,
policy making and technology driven innovation, reinforcing NU's commitment to industry aligned education and skilling. तो NIIT यूनिवर्सिटी ने नीति आयोग के जो अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पहले CEO रह चुके हैं और G20 के शेरपा भी थे, इनको अपना न्यू चांसलर बनाया। ओके, और ये के कस्तूरी रंगन को सक्सीड करेंगे। और इनका जो इनकी लीडरशिप का फोकस होगा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिसी मेकिंग और टेक्नोलॉजी ड्राइवन इनोवेशन। ओके, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, India's happiness ranking has improved steadily, reaching 118th in the World Happiness Report 2025, up from 126th in 2023 and 139th in 2020. Key factors include economic growth, better corruption perception, rank improved from 71 in 2022 to 56 in 2024, and rising personal freedom, ranked 23rd in 2024, highest in 5 years. India's GDP per capita rank also improved to 93rd in 2024. However, it still lags behind Pakistan and Nepal due to lower support, social support and economic inequality. तो भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया की हैप्पीनेस रैंकिंग 118वें नंबर पर रही और यह दर्शाता है कि इंडिया अपनी हैप्पीनेस रैंकिंग में धीरे धीरे सुधार कर रहा है। जैसा कि ये 2023 में 126 था और 2020 में 139 नंबर में था और अब जाकर ये 118वें नंबर पर पहुंचा है। इसमें इसका मुख्य कारण और भी इंडिया की और भी रैंकिंग में सुधार होना है, जैसे कि करप्शन में इसकी रैंकिंग 2022 में 71 थी और 2024 में 56 पर पहुंची। और पर्सनल फ्रीडम की बात करें तो इसकी रैंकिंग 2024 में 23वें नंबर पर रही, जो कि 5 साल में हाईएस्ट थी। और इंडिया की GDP पर कैपिटा रैंक भी इम्प्रूवमेंट हुआ, जो कि 2024 में 93rd नंबर पर रही। लेकिन फिर भी यह अभी पाकिस्तान और नेपाल से पीछे है, जैसे कि पाकिस्तान 109 नंबर पर, नेपाल 92nd, ड्यू टू लोअर सोशल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट। World Water Day 2025, observed on March 22nd, focuses on glacier preservation, highlighting glaciers' role in water security, climate regulation, and sustaining life. The United Nations urges global efforts to protect glaciers to combat climate change and water scarcity, emphasizing their critical importance for the planet's future. तो भाई हम लोग 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करते हैं और इसका जो फोकस होता है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन पर स्पेशल होता है, जैसा कि ग्लेशियर का वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन और सस्टेनेबल लाइफ में इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025, ऑब्जर्व्ड ऑन March 23rd, marks the 25th anniversary of WMO with the theme Closing the Early Warning Gap Together. It highlights the importance of early warning system in mitigating climate change impacts and extreme weather events, reinforcing global efforts for disaster preparedness and resilience. तो भाई हम लोग 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व करते हैं और 2025 में इसकी 75th एनिवर्सरी थी। साथ ही साथ इसकी थीम क्या रही, तो क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। और यह डे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को कम करने और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को कंट्रोल करने में अर्ली वार्निंग सिस्टम के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। ओके, नेक्स्ट। American boxing legend George Foreman passed away on March 21st, 2025 at age 76. A two-time heavyweight champion, Olympian and successful businessman, Foreman was celebrated for his remarkable comeback in boxing. His family announced his demise, remembering him as a humanitarian and sporting icon. भाई अमेरिका के बॉक्सिंग लीजेंड थे जॉर्ज फॉरमैन, उनकी 76 ईयर्स में डेथ हो गई। वह 2 बार हैवीवेट के चैंपियन रह चुके हैं, ओलंपियन रह चुके हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी रह चुके थे। ओके,
तो ये थे आज के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।